So today we'll have a look at the system message functionality in Moki. So if we talk about agenda, so we'll have a look from the documentation system message functionality क्या है. Then इसको अपने को implement करने के लिए there are some entities and services which we use. So out of the box जो available है we'll have a look at those. So इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने को सिस्टम मैसेज टाइप, सिस्टम मैसेज रिमोट, these three entities are needed, and sometimes we need a service job. So what is a service job? We'll have a look at that as well. Then all these services related to this, they're already, so this is part of the framework. ये अपने को already provided है. ये जो system message functionality जब भी तुम सुनोगे, we just have to configure it and write some of our own services and plug it in these configurations. So we'll see all this through an example. And the files which we need to check is entities के लिए रहता है service entities.xml, and for services we have system message services.xml file. Now if you see, these all are part of the framework. See, it is not inside any component. Like generally we were seeing mantle USL में रहता है या some other component. So just note this कि ये अपने को framework level पे मिलता है. We'll see in the IDE as well. So what is system message? सो डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया है. इफ़ यू टॉक जनरली तो सिस्टम मैसेज फंक्शनैलिटी अपने को तब काम में आता है वेन एवर वी हैव टू इंटीग्रेट बिटवीन टू सिस्टम्स. सो से आई एम डेवलपिंग माई एप्लीकेशन एंड देर इज़ एन एक्सटर्नल सिस्टम, कैन बी एनी अदर सिस्टम जिससे मुझे कम्युनिकेट करना है. So that communication can be both ways. I have to send some data or information to the other system, or the other system, I have to pull in some information from the other system. तो ये इनकमिंग कम्युनिकेशन या आउटगोइंग कम्युनिकेशन जो है ना, ये दोनों तरीके को हैंडल करता है थ्रू सिस्टम मैसेज. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट, एंड इट यूजेस द मैसेज क्यूज, एंड ये जो मैसेज हम बोलते हैं ना, दैट इज़ द सिस्टम मैसेज एंटिटी का रिकॉर्ड. ओके, वील सी ये क्या है. So that is used for processing both incoming and outgoing messages. And it gives a lot of things at the framework level, just say while sending or receiving the messages, if there are some errors happening. So it has the ability to record those errors as well. There is a separate entity, system message error करके entity है, उसमें सारे errors भी log कर देता है. Okay. Then we have the system message type. System message type से हम different kind of services को configure करते हैं. And then once we check in IDE, I'll show you that we can have certain services. जैसे whenever we say the message is outgoing, यानी कि हम भेज रहे हैं external system को, तो वो हमेशा मैसेज प्रोड्यूस करना होता है. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना. ओके, सो आई एम प्रोड्यूसिंग अ मैसेज. ओके, एंड देन द मैसेज गेट्स सेंड. Okay, and whenever I am receiving any data from the external system, तो ये होता है कि ये receiving वाले messages है. And then after receiving, if I want to process it in a way, then वो message को मैं process करके I can store it in my system. And ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को configuration के for we Moki provides this in form of system message type. अब सिस्टम मैसेज रिमोट क्या होता है. तो जो भी मेरा एक्सटर्नल सिस्टम है, जो रिमोट सिस्टम है, उसके कनेक्शन डिटेल्स तो मुझे कहीं स्टोर करने पड़ेंगे, अदरवाइज हाउ विल आई कम्युनिकेट. उसका यूआरएल हो गया. से अगर मैं रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट किसी दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रही हूँ, सो आई हैव टू स्टोर इट समवेयर, राइट. कि अगर वाई हाउ विल आई मेक एन रिक्वेस्ट टू दैट सिस्टम. तो जो भी रिमोट कनेक्शन के पैरामीटर्स होते हैं, दैट वी डू इट इन द सिस्टम मैसेज रिमोट. Then it also has another examples using Mocky SFTP, which we'll not cover in this session. हम एक सिंपल रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट से कैसे कम्युनिकेट करना है, वो रेस्ट एपीआई अपना नहीं है, से किसी एक्सटर्नल सिस्टम का है, तो उससे हम कैसे डेटा लेके आ सकते हैं, हम ये चेक करेंगे. सो ये तब तो अपने को ये क्यों काम आता है, वेन एवर वी हैव टू इंटीग्रेट बिटवीन टू सिस्टम्स, ये याद रखना. ओके, so अगर incoming messages है, so it always stores the original text from the external system, because once we have got that data, we have to store it somewhere. तो system message में एक message text field रहता है, it always stores in that, and वहाँ से I can get the data and process it and store it in my other entities. ये एक example हम देखेंगे, so don't worry अभी. Okay, then there are some recommended practices for outgoing messages. Let's jump to IDE, तो अपने को ज़्यादा clear होगा ये. So service entities में, so just I'll show you in the first
फ्रेमवर्क लेवल पे सी दिस द एंटिटी फोल्डर एंड वी हैव द सर्विस एंटिटीज डॉट एक्सएमएल। ओके, यहाँ पे अपने को ये वाली फाइल मिलेगी। सो द इम्पॉर्टेंट एंटिटीज फॉर दिस इज ये, सबसे पहले ये है कि सिस्टम मैसेज एंटिटी को देखना है अपने को। ओके, सो जब भी मैं डेटा लेके आऊँगी या आई विल सेंड द डेटा, तो ये सिस्टम मैसेज एंटिटी का एक रिकॉर्ड बनता है। ओके, अभी के लिए इतना भी ध्यान रखना कि दिस इज द एंटिटी which actually stores the data which gets say received from an external system. So then see this is the field message text. तो अभी जब हम सर्विसेज को देखेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सर्विसेज को, यू विल सी इन दिस फील्ड इट ऑलवेज स्टोर्स द डेटा। ये स्ट्रिंग फॉर्म में हमेशा सारा मैसेज टेक्स्ट स्टोर कर लेता है। देन देयर अदर फील्ड्स, जैसे सिस्टम मैसेज आईडी है, सिस्टम मैसेज टाइप आईडी है, रिमोट आईडी का रेफरेंस है। ठीक है, देयर आर अदर फील्ड्स एज वेल। लेट्स चेक अभी जो अपने काम की है। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल, then the second important entity is our system message type. ये एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन अपन एक बार एंटिटीज और सर्विसेज का वॉक थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, सिस्टम मैसेज टाइप रहता है अपना। अब यहाँ पे व्हाट आई वाज टॉकिंग कि प्रोड्यूस करना हो तो अलग प्रोसेसिंग हो सकती है, कंज्यूम कैसे करना है उस वाले डेटा को। तो सिस्टम मैसेज टाइप में हम लोग के पास कुछ फील्ड्स हैं, लाइक वी हैव द प्रोड्यूस सर्विस नेम, कंज्यूम सर्विस नेम, सेंड सर्विस नेम। सो जो भी मेरे को एक सर्विस लिखनी है जो मेरा डेटा वहाँ पे जनरेट करेगी, दैट विल बी माई प्रोड्यूस सर्विस नेम। तो मैं एक सर्विस लिख के आई कैन गिव द नेम हेयर, आई कैन कॉन्फ़िगर माई नेम। सो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम मैसेज टाइप से ये वाली सर्विस को कॉल करके वो प्रोड्यूस करता है। देन वी हैव द कंज्यूम सर्विस नेम, दिस इज द सर्विस टू कॉल आफ्टर अ मैसेज इज रिसीव टू कंज्यूम इट। ठीक है, ये सब कैसे कॉन्फ़िगरेशंस चलते हैं, अगेन लेट्स जस्ट वेट फॉर सम टाइम, अपन देखेंगे इसको अभी। Then we have just, I'm just telling you the important fields which we need to cover यहाँ पे। Okay, so produce service name ध्यान रखना है अपने को, consume service name, send service name है send करने के लिए data, and then receive service name. So these both are connected, produce and consume, and receive and send are connected in that way. फिर अपने को जो भी पाथ रहता है कहाँ से डेटा लेना है, वी कैन यूज द सेंड पाथ एंड द रिसीव पाथ पैरामीटर्स ऑफ दिस एंटिटी। देन आई वाज टेलिंग अबाउट सिस्टम मैसेज रिमोट। तो यहाँ पे अगर अपन ये देखें, यहाँ पे URL है, सो वी कैन गिव द URL ऑफ द रिमोट सिस्टम। अगर सेंड URL सिर्फ हम सेंडिंग के लिए कर रहे हैं तो सेंड URL कर सकते हैं, या रिसीव URL पे भी अपना डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अ रिक्वायरमेंट। एंड देन उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, नो यू कैन नॉट एवरीवन कैन एक्सेस द एक्सटर्नल सिस्टम्स। तो हो सकता है मुझे कुछ क्रेडेंशियल्स भी स्टोर करने हो टू एक्सेस दोज, टू एक्सेस दैट एक्सटर्नल सिस्टम। So I can give the username and password, or if they provide a public key or private key, so based on it I can do the configuration in the system message remote. Okay, now what are the services which we have to check? So for service you have to go inside the service folder inside the framework, and अपने पास system message services .xml file है. So let's check once some services from here. तो कुछ इंटरफेसेस अपने को प्रोवाइडेड है। नाउ यू नो व्हाट इज एन इंटरफेस ऑफ अ सर्विस। तो अपने पास यहाँ पे डिफाइंड है कि ये इनपुट पैरामीटर्स है, या आउटपुट पैरामीटर्स है फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विस। तो एक आउट ऑफ द बॉक्स अपने को इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है रिसीव सिस्टम मैसेज का। ठीक है, नाउ व्हाई दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेस, आई विल टेल। ओके, सो यहाँ पे रिसीव सिस्टम मैसेज में देख लो, अपने को सिस्टम मैसेज टाइप आईडी चाहिए, मैसेज टेक्स्ट चाहिए, क्या वहाँ से डेटा आ रहा है। देन सम ऑफ द नॉन मैंडेटरी फील्ड्स भी हैं, एंड दिस रिटर्न्स अ सिस्टम मैसेज आईडी लिस्ट। सो व्हाट हैपेंस इज, ये अपना इंटरफेस तो ये कहीं इम्प्लीमेंट होके एक सर्विस में यूज़ किया होगा। सो वी हैव अ रिसीव सिस्टम मैसेज सर्विस। ये सेंड सर्विसेज हैं सारी ऐसी। ये एक मेरी आउट ऑफ द बॉक्स सर्विस है, रिसीव इनकमिंग सिस्टम मैसेज, एंड दिस इम्प्लीमेंट्स द सर्विस, द इंटरफेस, दिस इज द रिसीव सिस्टम मैसेज। तो हम अभी ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर मैं खुद की कोई रिसीव सिस्टम मैसेज सर्विस नहीं लिखती हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल होती है। एंड इफ़ आई हैव टू राइट माई कस्टम रिसीव सिस्टम मैसेज सर्विस, सो ये चीज़ ध्यान रखना है, इट शुड ऑलवेज इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस। ओके,
तुम अपने पैरामीटर्स डाल सकते हो कस्टम में, बट एटलीस्ट इसको ये रिसीव सिस्टम मैसेज इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, because those are the required input parameters and output parameters, and that's a way in which the receive system message service should be defined. ठीक है, सो इसके अंदर ये क्या करता है, इट विल रिसीव अ मैसेज से, इसकी डिस्क्रिप्शन को अगर अपन देखते हैं, इफ देयर इज अ सिस्टम मैसेज टाइप डॉट रिसीव सर्विस नेम, सो वी सॉ इन द एंटिटी कि सिस्टम मैसेज टाइप में कुछ फील्ड्स है, रिसीव सर्विस नेम, सेंड सर्विस नेम, कंज्यूम और सेंड सर्विस नेम। सो अगर तो वहाँ पे डिफाइन है तो इट विल कॉल दैट सर्विस, अदरवाइज यही वाली सर्विस सबसे पहले आउट ऑफ द बॉक्स कॉल होती है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हाट इट विल डू इज, सो अगर अपन सर्विस को देखते हैं, सो जो भी सिस्टम मैसेज टाइप आया है, सी अगर तो सिस्टम मैसेज टाइप में रिसीव सर्विस नेम है तो वो उसको कॉल करता है। सी ये दिस इज लाइक अ वेरिएबल, तो सिस्टम मैसेज टाइप से ये रिसीव सर्विस नेम लेके इसको कॉल कर देगा। ठीक है, एंड देन ये क्या करता है, सिस्टम मैसेज का रिकॉर्ड बना देता है, एंड देन इट विल फॉरवर्ड इट टू द कंज्यूम रिसीव्ड सिस्टम मैसेज सर्विस। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जांपल, तब सर्विस देखेंगे अपने को ज़्यादा समझ में आएगा। सो व्हाट एग्जांपल आई हैव टेकन इज, एक एग्जाम्पल कंपोनेंट में भी एक एग्जाम्पल है, उसको अपन बाद में देखते हैं। फर्स्ट आई हैव क्रिएटेड अ सिंपल वन वे कम्युनिकेशन एग्जाम्पल। सो व्हाट आई हैव डन इज, सो मैंने अभी के लिए फॉर आर डेमो पर्पसेस आई हैव यूज्ड वन ओपन पब्लिक रेस्ट एपीआई। ठीक है, ये अपने को टेस्टिंग के लिए पर्पस के लिए ओपनली अवेलेबल है, ये gores.co.in। सो जस्ट इमेजिन दैट ये अपनी कोई एक एक्सटर्नल सिस्टम है जिससे मुझे डेटा लेके आना है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, and इसका एंड पॉइंट, तो इसमें कुछ एंड पॉइंट अवेलेबल है यूजर्स। ठीक है, सो बहुत सारे यूजर्स हैं, ये कोई मेरी एक एक्सटर्नल रेस्ट एपीआई है। ठीक है, दिस इतना समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से मुझे इस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है एंड डेटा लेके आना है अपने सिस्टम पे। So I will use a system message type and system message remote connection for configuring this REST API endpoint in my system. So अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं अपन लोग, एक सिंपल एक यूज़र का डेटा अपने सिस्टम में लेके इसकी पार्टी रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, एक यूज़र है, अब मुझे इस यूज़र को इंटीग्रेट करके अपने सिस्टम में भी लेके आना है। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू लाइक हैव दिस सिंक अक्रॉस दीज टू सिस्टम्स। सो वॉट आई विल डू इज, सबसे पहले मुझे रिमोट कनेक्शन बनाना है। दिस इज द कनेक्शन डेटा फॉर कनेक्टिंग टू दैट रिमोट ओपन पब्लिक एपीआई। अभी पब्लिक एपीआई है, ये बाद में दूसरी अपनी कोई भी रिमोट सिस्टम की एपीआई हो सकती है जिसमें प्रॉपरली अपने को यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। अभी ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो मैंने यूजर नेम पासवर्ड अभी के लिए खाली ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, अदरवाइज यू कैन गिव दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड हियर। सो सिस्टम मैसेज रिमोट को स्टेप वन अपने को कॉन्फ़िगर करना है। सो गिव अ आईडी टू इट, जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो रिमोट दे दिया। You can give a description to it, and in the send URL what I have done is I have given this base URL। okay, बेस यूआरएल दिया है मैंने। अब इसके बाद मुझे अलग अलग टाइप के डेटा भी वहाँ से फेच करने हो सकते हैं, तो उसका अलग अलग सिस्टम मैसेज टाइप बनेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम डायरेक्टली ही एक पर्टिकुलर रिसोर्स दे दोगे देन यू कैन कम्युनिकेट विद ओनली दिस एपीआई एंड पॉइंट, राइट। तो इसलिए अपन ने अभी बेस यूआरएल यहाँ पे दे दिया। अब अभी के लिए मैं एक रिसोर्स की बात कर रही हूँ, वहाँ पे यूजर्स रिसोर्स है। सो व्हाट आई विल डू इज आई हैव टू क्रिएट अ सिस्टम मैसेज टाइप रिकॉर्ड। ये क्या करेगा, दिस विल हेल्प मी इन आइडेंटिफाइंग दैट आई हैव टू गेट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा ओनली। इसलिए सिस्टम मैसेज टाइप है कि व्हाट टाइप ऑफ मैसेज आई एम एक्सपेक्टिंग और सेंडिंग, ओके, वाइल कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल सिस्टम। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है अपना सिस्टम मैसेज टाइप को कॉन्फ़िगर करना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने आईडी दे दिया। ठीक है, एंड यू कैन गिव अ डिस्क्रिप्शन टू इट, एंड नाउ what it will happen is once I receive that user information, ठीक है, अब रिसीव का मैंने कुछ भी अलग से यहाँ पे नहीं लिया है, अदरवाइज आई कैन गिव द रिसीव सर्विस नेम इज वेल हियर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अपने पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है एट दिस एंटिटी लेवल,
बट मैं आउट ऑफ द बॉक्स ही रिसीव सर्विस को यूज़ करना चाहती हूँ बिकॉज देयर इज़ नो स्पेशल हैंडलिंग इन इट. बट आफ्टर आई रिसीव द डेटा एंड इट गेट्स स्टोर्ड इन द मैसेज टेक्स्ट, मुझे कुछ हैंडलिंग करनी है क्योंकि मुझे उसको पर्टिकुलर एंटिटीज़ में सेव करना है. वो यूज़र का डेटा अपन पार्टी एंटिटी में स्टोर कर देंगे, उसका एक पर्सन बनाएंगे मॉकी में. तो इसके लिए मैंने खुद की एक कंज्यूम सर्विस लिखी है. ठीक है, दिस इज़ माई कंज्यूम डेमो यूज़र मैसेज से. ओके, अब यहाँ पे सेंड पाथ दे दिया है मैंने कि कहाँ से मुझे एक्सेस करना है. अभी के लिए मैंने इसको हार्ड कोड करा है कि अपने को एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी का डेटा स्टोर करना है. ठीक है, अपन इसको जनरिक बनाते हैं रियल वर्ल्ड यूज़ केस में. एंड देन, और यहाँ पे जो भी अपन एग्जांपल देख रहे हैं ना, इट्स जस्ट वहाँ से डेटा अपन सिर्फ लेके आ रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं. मैं अभी इस एग्जांपल में डेटा भेज नहीं रही हूँ. ठीक है, सिस्टम में. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन जस्ट वन वे कम्युनिकेशन अभी, कि अपन पहले इतना देखते हैं डेटा लेके कैसे आना है एक्सटर्नल सिस्टम में. दैट्स व्हाई यू कैन सी कुछ मैंने सेंड सर्विस, इस टाइप की सर्विस मैंने प्रोड्यूस सर्विस नहीं लिखी है. ठीक है, सो नाउ नाउ आई हैव टू फिगर आउट अब मैं डेटा वहाँ से कैसे लेके आऊँ. ठीक है, सो इसके लिए क्या होता है, अपन सर्विस जॉब एंटिटी यूज़ करेंगे. सो एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं अपन इसको. सो इनसाइड लॉजिक एंड सर्विसेज you will find service jobs. So they have explained it a bit about the service job. तो बाय नेम यू कैन सी कि ये एक जॉब के, अगर अपने को कोई भी सर्विस एक जॉब की तरह शेड्यूल करनी है विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो मैं एक सर्विस जॉब बना सकती हूँ. इसकी एंटिटी भी अपने को सर्विस एंटिटीज़ में ही मिलेगी. ये सब फ्रेमवर्क लेवल पे अपने पास अवेलेबल है. सी, दिस इज द सर्विस जॉब एंटिटी. सी, इसका जो मेजरली यूज रहता है कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, तो यहाँ पे यूज भी लिखा है, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन टाइप ऑफ एंटिटी. सो व्हाट इट डज इज इट शेड्यूल्स सम सर्विस जॉब्स. तो जब एक बार मेरे को शेड्यूल करना है तो मुझे कुछ फ्रिक्वेंसी बतानी होगी कि कितने टाइम के बाद ये जॉब चलती रहे. तो अपने को उसमें क्रॉन एक्सप्रेशन फील्ड को यूज़ करना रहता है. यहाँ पे अपन लोग यूज़ एक डिफाइन कर सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी, तो इसके हिसाब से इसका शेड्यूल सेट हो जाएगा. ठीक है, अब ये शेड्यूल तो सेट कर लिया, सर्विस जॉब भी मैंने सेट कर ली, लेकिन ये कॉल क्या करेगी, है ना. ये इतनी फ्रीक्वेंसी के बाद कुछ तो कॉल होना चाहिए. सो इसमें अपन लिखते हैं सर्विस नेम. एक कोई सर्विस नेम लिख देंगे कि ये वाली सर्विस नेम इतने टाइम के बाद चलती रहेगी, एंड वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, वो एक सर्विस लिख के हम उसका सर्विस नेम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं. कि तो ये अपनी सिंपल सर्विस जॉब डिफाइन हो जाएगी. अब इस सर्विस जॉब को अगर कुछ पैरामीटर्स चाहिए, सो वी हैव अ सर्विस जॉब पैरामीटर एज वेल. ये सपोज मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, तो जैसे अपन सिंपल सर्विस में पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं ना, इसी तरह सर्विस जॉब के पैरामीटर्स इसको देख लेना, ऐसा है ये. तो इसका एक एग्जांपल जो अपन ने अभी बनाया है, अब अपने एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं ना, उस वाले रिमोट सिस्टम को पोल करेंगे. पोल, यू अंडरस्टैंड राइट, अपने को बार बार उसको पिंग करके देखना है डेटा है क्या, डेटा आ गया क्या. तो वी हैव टू कम्युनिकेट टू दैट रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट इन दिस केस एंड गेट द डेटा. ठीक है, सो मैंने एक सर्विस जॉब डिफाइन करी. ये क्यों डिफाइन करी, फॉर फेचिंग दैट यूजर डेटा फ्रॉम द रिमोट. ओके, तो मैंने एक जॉब नेम डिफाइन कर दिया, एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, एंड देन दिस इज माय सर्विस नेम जो पोल करेगा यहाँ पे. ठीक है, ये अपन अभी देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन सारी सर्विसेज के क्या है. अभी के लिए क्रॉन एक्सप्रेशन दे दिया है अपन ने. अभी अपने को क्विकली टेस्ट करने के लिए सर्विस टूल्स में सर्विस जॉब में आई कैन रन दिस सर्विस जॉब इमीडिएटली एज वेल. ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको अभी शेड्यूल के तरह ही कॉल करूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया एवरी 15 मिनट्स इट शुड बी रनिंग. अब यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं बिकॉज आई हैव टू कनेक्ट इट टू माई सिस्टम मैसेज टाइप एंड सिस्टम मैसेज रिमोट. So for now what I've done is I've given two parameters. इसमें मैंने सिस्टम मैसेज टाइप आईडी दे दिया है, तो इसका रेफरेंस ये देखो, दिस इज द सेम आईडी. ओके, एंड ये है सिस्टम मैसेज रिमोट आईडी. ये कैसे यूज हो रहा है अपन अपन देखेंगे. पहले इस सर्विस को देखते हैं क्योंकि अपने को डेटा लेके कैसे आना है. सो नाउ यू आर अवेयर विद रेस्ट एपीआई इज अ लिटिल इन मॉकी, ना कि रेस्ट को कॉल कैसे करते हैं.
सो अपन ने देखा था थ्रू द रेस्ट XML फाइल। ओके, अब मॉकी में अपने को रेस्ट क्लाइंट भी अवेलेबल है, दिस इज पार्ट ऑफ मॉकी फ्रेमवर्क। इससे अपन लोग दूसरे कोई भी रेस्ट एपीआई को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन इज यहाँ पे सिस्टम मैसेज टाइप आईडी और सिस्टम मैसेज रिमोट इनपुट हो रहा था। सो पहले तो कुछ अपने चेक्स लगा दिए सिंपल कि अगर वो टाइप अवेलेबल भी है या नहीं अपने पास, सिंपल सम एरर चेक्स। ओके, यू कैन जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ। अब उस सिस्टम मैसेज टाइप से मैंने सबसे पहले सेंड पाथ लिया। ठीक है, एंड सिस्टम मैसेज रिमोट से सेंड यूआरएल लिया। ये क्यों लिया? अपना पूरा एंड पॉइंट बनाने के लिए, बेस यूआरएल प्लस माई स्लैश यूजर्स। राइट, तो ये सेंड यूआरएल जो बेस यूआरएल मुझे रिमोट से मिल जाएगा, एंड मुझे किस टाइप का डेटा मुझे लेके आना है अभी वो मैंने सिस्टम मैसेज टाइप से ले लिया। तो मेरा पूरा एंड पॉइंट बन गया, इसमें यूआरएल बन गया। ठीक है, सेंड यूआरएल प्लस द एंड पॉइंट। ये एक रेस्ट क्लाइंट डिफाइन करने का वे है। सो दिस इज आई एम जस्ट इंस्टेंशिएटिंग अ रेस्ट क्लाइंट एंड सेटिंग दी पैरामीटर्स टू इट कि उसको क्या मेथड चाहिए, क्या यूआरएल है, क्या कंटेंट टाइप है। अगर मैं पोस्ट टाइप रिक्वेस्ट करती तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी भी ऐड कर सकती हूँ। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल टू मेक अ रेस्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, गेट मेथड दे दिया अभी के लिए, मैंने यूआरएल बना दिया और कंटेंट टाइप अभी सेट कर दिया। एंड व्हाट आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू कॉल। तो इससे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, आई एम कॉलिंग माई एक्सटर्नल रेस्ट एपीआई। क्योंकि जब मैं इसको कॉल करूँगी रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को मैं स्टोर कर लूँगी कहीं पे। ओके, आई गॉट द टेक्स्ट आउट ऑफ दैट रेस्ट रिस्पॉन्स, एंड एक बार मेरे को डेटा आ गया, नाउ आई हैव टू कॉल माई रिसीव इनकमिंग सिस्टम मैसेज जो अपन ने अभी देखा था। ठीक है, ये फ्लो समझना ज़रूरी है, अभी के लिए इसको ऐसे लेना। ठीक है, इट माइट बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग अभी, बट जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फ्लो कैसे चल रहा है, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या एंटिटीज़ हैं, एंड ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये वी आर पर्पज इज टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस फ्लो। तो ये क्या क्या अपन ने यहाँ पे इसको रिसीव में रिसीव सर्विस में भेज दिया। एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि जो भी टेक्स्ट आता है उसको हम मैसेज टेक्स्ट में भेजते हैं, अभी के लिए स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैसेज टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट भेज दिया। Okay. Now what it will do is it will go inside that receive incoming system message। अपन फ्लो पे चलते जाते हैं, सर्विसेज चेक करते हैं। So we were already seeing this system message services। So ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, रिसीव में आ गया। अब ये क्या करेगा, सिस्टम मैसेज टाइप में तो रिसीव सर्विस नेम है नहीं अपना, सो इट विल नॉट गो इनसाइड दिस। कुछ भी स्पेशल रिसीव अलग से रिसीव सर्विस कॉल नहीं हो रही है, कस्टम कोई सर्विस कॉल नहीं हो रही है। what it will do is it will create a system message record, एंड जो मैसेज टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट किया है अपन ने उससे ही सिस्टम मैसेज रिकॉर्ड बना देगा। कॉन्टेक्स्ट में मैसेज टेक्स्ट है, इसकी फील्ड है सिस्टम मैसेज की, पूरा डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन द स्टेटस रिसीव्ड। ठीक है, वंस इट इज सक्सेसफुली रिसीव्ड। अब इसके बाद रिसीव तो कर लिया, अब अपने को देखना है कुछ कंज्यूम कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले तो ये आउट ऑफ द बॉक्स कंज्यूम रिसीव्ड सिस्टम मैसेज कॉल होगा। सो इफ यू सी यहाँ पे देख, अब ये वाला सर्विस कॉल होगा। सो इट विल कॉल द कंज्यूम सर्विस इफ इट इज डिफाइंड इन माय सिस्टम मैसेज टाइप। एंड ये अपन ने देखा था कि इन दिस सिनेरियो अपन ने कंज्यूम सर्विस नेम डिफाइन करी है अपने सिस्टम मैसेज टाइप में। ओके, सो नाउ सो वंस इट विल गो इनसाइड दिस, तो ये चेक करेगा कि अपना सिस्टम मैसेज टाइप पे कोई कंज्यूम सर्विस नेम है तो उसको कॉल कर देगा। ये तो पहले कुछ चेक्स है यहाँ पे। देन यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस अपडेट कर देता है सिस्टम मैसेज का, सबसे पहले रिसीव्ड में था, अब अगर ये कंज्यूम होना स्टार्ट हो गया तो इट चेंजेस द स्टेटस टू कंज्यूमिंग। एंड देन अगर कोई कंज्यूम सर्विस नेम डिफाइंड है तो ये वाली सर्विस कॉल हो जाएगी। तो इन आर केस व्हाट वी हैव डन इज अपन ने डिफाइन करी है कंज्यूम सर्विस नेम, एंड मैंने वहाँ पे कॉन्फ़िगर करी है। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिफाइंड इट सेपरेटली। अब यहाँ पे मैंने कंज्यूम, आई कुड हैव जस्ट नॉट रिटर्न अ कंज्यूम सर्विस, ये अपने ऊपर है, अपने को डेटा को प्रोसेस कैसे करना है। अब मेरे को वहाँ का यूज़र जो है वहाँ की मॉडलिंग डिफरेंट है रिमोट सिस्टम में। यहाँ अगर मैं जो वो यूज़र का डेटा लेके आना है तो मुझे पता है कि मॉकी में पार्टी बनता है,
पर्सन रिकॉर्ड बनता है, तो मुझे उसमें स्टोर करना है, इसलिए मुझे अलग से कंज्यूम सर्विस लिखनी पड़ी कि अगर मुझे कुछ स्पेशल हैंडलिंग करनी है विद दैट डेटा विच आई हैव रिसीव, देन आई विल राइट दिस कंज्यूम मैसेज सर्विस। तो कुछ नहीं किया अपन ने, सिंपल अभी के लिए लिख दी एक सर्विस कि ये सिस्टम मैसेज रिकॉर्ड जो बना था उससे हम मैसेज टेक्स्ट उठा लेंगे, क्योंकि उसमें पूरा ये वाला अपना रिस्पॉन्स आ जाएगा। दिस रिस्पॉन्स विल बी स्टोर्ड एज इट इज, ओके। एंड मैंने उस एपीआई रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज इट वाज अ टेक्स्ट, राइट, वी स्टोर्ड इट इन द मैसेज टेक्स्ट। एंड मैंने अभी के लिए क्रिएट पर्सन सर्विस को कॉल कर दिया फ्रॉम द पार्टी सर्विसेज। एंड फॉर नाउ टेस्टिंग के लिए अपन उसका, इफ यू सी इसका डेटा इस टाइप का है, ये डेटा है, इसमें एक आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है। तो अभी मैंने इन दो सर्विसेज को, इन दो फील्ड्स को यूज़ करके डेटा स्टोर किया है। अपन इसको देखेंगे अभी चला के, ठीक है। सो ये सूडो आईडी में मैंने डेटा स्टोर कर दिया आईडी का, एंड फर्स्ट नेम में अभी मैंने नेम को भेज दिया। तो अपन इसको चला के देखते हैं कि क्या अब ये यूज़र मेरे सिस्टम में इस डेटा को, ये डेटा आ पाता है कि नहीं, ठीक है। सो ये सब कॉन्फ़िगरेशन अपने लिए इम्पोर्टेंट है ये समझना। अगर मैं इस यूज़र की जगह मुझे इसमें कोई और रिसोर्स होता, तो मैं क्या करती, एक नया सिस्टम मैसेज टाइप बना देती, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेज डेटा नाउ, ठीक है। उसका अलग सिस्टम मैसेज टाइप में हम लोग इसका सेंड पाथ चेंज कर देते हैं, ठीक है। कुछ ये यूजर्स के अलावा कुछ और होता है, से समथिंग लाइक एड्रेसेस, कुछ भी, तो मुझे नया सिस्टम मैसेज टाइप बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेम में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो दिस सिस्टम मैसेज टाइप का फंक्शन यही है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस को आइडेंटिफाई करना, और उसमें जो भी हैंडलिंग चाहिए उसके अलग अलग सर्विसेज को हम डिफाइन करते हैं सिस्टम मैसेज टाइप में। एंड सिस्टम मैसेज रिमोट इज क्लियर है, ये तो अपना रिमोट कनेक्शन के क्रेडेंशियल्स को स्टोर करने के लिए है बेसिकली। नाउ व्हाट वी डू इज, अब ये वाला डेटा मैंने ऑलरेडी बनाया है, अपन एक दूसरा यूज़र लेते हैं। लेट मी चेंज द आईडी फॉर डेमो पर्पस। तो एक यूज़र 9 आईडी से भी अवेलेबल है रिमोट सिस्टम में। इसको क्विकली पहले तो मैं डेटा लोड कर लेती हूँ। सो माई सर्वर इज़ रनिंग। सो नाउ वी नो हाउ वी कैन क्विकली लोड द डेटा। सो मेरे को इसका सेंड पाथ चेंज करना है, तो लेट मी जस्ट क्विकली अपडेट दिस डेटा। ओके, सो अब ये सेंड पाथ मेरा चेंज हो गया। अब इसको अपने को टेस्ट करने के लिए, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जॉब से, रिमेंबर सर्विस जॉब। वो सर्विस जॉब का काम है डेटा लेके आना पोल करके, ठीक है। तो अभी के लिए अपन लोग वेट नहीं करेंगे सर्विस जॉब की, देर इज़ अ वे इन विच वी कैन रन दैट सर्विस जॉब। सो सिस्टम में बैकएंड स्क्रीन्स में मॉकी में वी हैव दिस सर्वर एडमिन में सर्विस जॉब्स। जैसे अपन टूल्स में एंटिटीज और सर्विसेज ये सारी चीज़ें देख पाते हैं, इसी तरह से हम सर्विस जॉब का भी पूरा इंटरफेस दिया हुआ है मॉकी में। सो आई हैव टू फाइंड माई सर्विस जॉब यहाँ पे। तो ये मेरी सर्विस जॉब बनी हुई है यहाँ पे। इसके जो भी पैरामीटर्स वगैरह मैंने डिफाइन करे थे, इट हैज़ ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड फ्रॉम दैट रिकॉर्ड, ठीक है। सिस्टम मैसेज रिमोट आईडी मैंने दिया है, इस वाले कनेक्शन से अपने को कम्युनिकेट करना है। सिस्टम मैसेज टाइप ये वाला है, ठीक है। व्हाट आई डू इज, एंड व्हाट आई ऑल्सो डन इज इनसाइड दीज सर्विसेज मैंने कुछ लॉगर स्टेटमेंट्स डाल के रखे हैं, ताकि अपने को पता चलेगा कौन सी सर्विस में आ रहा है और कंट्रोल फ्लो कैसे चल रहा था। सो एग्जिस्टिंग वाली सर्विसेज में भी मैंने कुछ लॉगर लगा के रखे हैं। सी व्हाट आई हैव डन इज आई पुट सम लॉगर स्टेटमेंट्स कि दिस इज इनसाइड दिस सर्विस। तो अपने को एक बार कंसोल में पता चलेगा कि ये फ्लो सबसे पहले कहाँ आया, फिर कौन सी सर्विस कॉल हुई, ठीक है। नो, our server is running, and अभी के लिए if we see all this data is loaded, सिस्टम मैसेज रिमोट अपने पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है क्योंकि मैंने पहले ही डेटा लोड कर लिया था, ठीक है। एंड सिस्टम मैसेज, तो ये सारे कॉन्फ़िगर करने के बाद ऑफ कोर्स वी हैव टू लोड ऑल दिस डेटा अपने सिस्टम में। तो ये अभी के लिए डेमो यूज़र मैसेज भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। और इसका सेंड पाथ अपडेट हो गया, अभी ये वाला यूज़र का डेटा अपने को लेके आना है। नाउ सिस्टम मैसेज को अभी नहीं देखते हैं, लेट्स रन इट। दीज आर द यूज़र मैसेजेस जो बन गए विच आई हैव ट्राइड अर्लियर, ओके।
अपन अभी नया देखते हैं. So what I'll do is I'll run the job from here. Okay. So see. अब एक बार कंसोल में अपन देखते हैं ठीक क्या हुआ. सो सबसे पहले ये कहाँ पे गया. सबसे पहले अपन ने पोल वाली सर्विस कॉल करी थी. ये क्यों कॉल हुई, बिकॉज सर्विस जॉब में अपन ने सर्विस नेम डिफाइन किया था कि पोल डेमो यूज़र को कॉल करो. तो ये सबसे पहले यहाँ गया होगा. ठीक है. इसके बाद इस सर्विस में हमने लिखा था कि आफ्टर वी गेट ऑल दैट डेटा द एपीआई रिस्पॉन्स यू हैव टू कॉल द रिसीव इनकमिंग सिस्टम मैसेज सर्विस. ठीक है. तो ये देखो ये इसके बाद गया रिसीव इनकमिंग सिस्टम मैसेज पे. ठीक है. इसके अंदर जाने के बाद इसने क्या किया होगा, सिस्टम मैसेज रिकॉर्ड बना दिया होगा. ठीक है. सो नाउ इफ आई सी द लेटेस्ट इज 412. नाउ वी हैव अ न्यू वन. तो एक सिस्टम मैसेज रिकॉर्ड बन गया है. ये सारा डेटा जो अपना रन हुआ है उसकी सारी डेटा फील्ड्स पॉपुलेट हो गई हैं. अभी ये डेटा कंज्यूम भी हो गया है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये कंट्रोल फ्लो यहाँ आया होगा ना इनसाइड रिसीव, तो इसका स्टेटस था रिसीव्ड. रिमेंबर इनसाइड द सर्विस वी सॉ, so it was message received and then it has give set all the details. एंड ये देखो ये मैसेज टेक्स्ट में ये पूरा डेटा अपने पास आ गया जो उस रेस्ट एपीआई का रिस्पॉन्स था इन दिस केस. ओके. इट हैज स्टोर्ड एवरीथिंग इनसाइड माय मैसेज टेक्स्ट फील्ड ऑफ द सिस्टम मैसेज. नाउ आफ्टर दैट अपन ने कोई रिसीव सर्विस नेम तो डिफाइन नहीं करी थी, तो उसके बाद वो तो कोई कॉल नहीं हुई. इसके बाद इसने फ्लो भेजा कंज्यूम रिसीव्ड सिस्टम मैसेज को. ठीक है. अब अपने पास ऑलरेडी अपनी कंज्यूम सर्विस थी, तो तुम देखो ये अपना डेमो वाली की कंज्यूम डेमो यूजर मैसेज कॉल हो गई. ठीक है. सो दिस इज हाउ द फ्लो वेंट. सबसे पहले रिसीव हुआ, ये पोल के बाद रिसीव हुआ, फिर ये कंज्यूम हो गया. एंड इनसाइड आर कंज्यूम अपना एक पार्टी रिकॉर्ड बन जाना चाहिए था. ये मैंने ऐसे रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाया है. ठीक है. सो लेट अस सी अपना पार्टी बना है क्या. सो सी ये अपना एक नया पार्टी बन गया. अपन ने डेटा डॉट आई डी को सूडो आई डी में करवाया था. एंड उस सर्विस में पर्सन रिकॉर्ड भी बनता है. सी ये वाला फर्स्ट नेम अगर तुम देखो तो दिस इज दैट डेटा. So you saw how easily we were able to communicate to an external system using all these configurations in Moki. तो ये डेटा मेरे पास आ गया. मेरे को जिस तरह से उसको प्रोसेस करना था, कंज्यूम करना था, मैंने एक सर्विस लिख दी उसकी. ठीक है. एंड ऑल्सो लेट्स चेक सिस्टम मैसेज में. अब देखो एंड में जब ये पूरा कंज्यूम हो जाता है ना, इसका स्टेटस अपडेट हो जाता है टू सिस्टम मैसेज कंज्यूम्ड. अब अगर इसमें कोई एरर आता, लाइक आई हैव रन्स इट प्रीवियसली, तो कुछ एरर्स आए थे. ठीक है. सपोज वाइल टेस्टिंग कुछ एनी एरर, तुम्हारा सर्वर से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, या तुम्हारे रिक्वेस्ट में कुछ इट्स रॉन्ग राइट, जब तुम्हारा प्रोसेस हो रहा था कुछ एक फील्ड मिसिंग थी, इस टाइप के कुछ भी मैसेजेस एरर मैसेजेस अगर आते हैं, तो अपने को इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. अदरवाइज सर्वर लॉग्स में जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, अगर इस टाइप का अपने पास पूरा कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है. तो ये अपने को एक सिस्टम मैसेज एरर एंटिटी भी प्रोवाइड करता है, विच इज़ रियली हेल्पफुल. तो ये देखो ये मेरे पिछले पुराने रन्स हैं. तो इसमें मुझे कुछ एरर्स आए थे. जैसे मैंने सपोज कुछ गलत लिख दिया था यहाँ पे. ठीक है. पार्टी आईडी रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एरर मैसेज आया था मुझे. उस वक्त मैंने कंसोल में देख लिया, बट इट विल गेट लॉस्ट इफ. तो ये पूरा लॉक करता है अपने. तो अपने वी कैन गो बैक चेक द एरर मैसेजेस एंड वी कैन अगेन रेक्टिफाई इट. एंड ये अटेम्प्टेड स्टेटस आईडी इसके बाद कंज्यूम्ड है कि इसके बाद इसको क्या करना है, कंज्यूम ही करना बचा है. रिसीव ये हो गया था बट इट वॉज नॉट एबल टू कंज्यूम. सो ऑल दीज थिंग्स ये सिस्टम मैसेज अपने आप लॉक करता है ये वाली चीज़. एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर फिगरिंग आउट व्हाट द एरर वाज. एंड इफ आई वांट टू रीट्राई इट, तो ये वाले रिकॉर्ड से आई कैन अगेन चेक कि अपने को कंज्यूम करना बचा है, देयर वाज एन एरर इन दिस डेटा रिसोर्स. तो ये सारे एरर्स भी इफ यू कैन सी ये लॉग हो गए मेरे. और ये अपना सिस्टम मैसेज फाइनली स्टेटस आईडी कंज्यूम में आ गया. सो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन से आई वाज एबल टू कम्युनिकेट. ठीक है. ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था बिकॉज वी आर यूजिंग अ सिमिलर थिंग इन आवर प्रोजेक्ट एज वेल. ओके. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो दिस फ्लो कि एक्सटर्नल सिस्टम के कोई एपीआई एंड पॉइंट है, मुझे उससे इंटीग्रेट करना है, मुझे डेटा लेके आना है, अपने सिस्टम में भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि जो उधर डेटा है मुझे यहाँ पे भी सिंक करना है. So this is how I can configure and process all this data from an external system.
अभी अपन ने काफ़ी चीज़ें हार्ड कोड करी हैं, बट दैट्स फाइन, है ना। अपने को भी टेस्ट करना था एक कोई रेस्ट एपीआई से। सो ये एग्जांपल है अपना रिसीव करने का। अब तुम आउटगोइंग मैसेजेस भी कर सकते हो, दैट इज आई वांट टू नाउ सेंड सम डेटा टू एन एक्सटर्नल सिस्टम। तो उसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं अभी के लिए एग्जांपल कंपोनेंट में, दैट हाउ इट वर्क्स, सो दैट इट विल गेट मोर क्लियर। सो अपना जो एग्जांपल कंपोनेंट है जो अवेलेबल है इनसाइड द डेटा, देयर इज वन फाइल demo-data.xml। तो यहाँ पे उन्होंने भी देखो एक सिस्टम मैसेज टाइप कॉन्फ़िगर किया है। दिस इज एन आईडी ऑफ इट, डिस्क्रिप्शन है कुछ। अब इस एग्जांपल में ना दे हैव गिवन शोन बोथ, प्रोड्यूस करना भी और कंज्यूम करना भी, ठीक है। तो उन्होंने एक सिंपल प्रोड्यूस सर्विस लिखी है। लेट्स सी द एग्जांपल सर्विसेज क्या है इसमें प्रोड्यूस में। सो व्हाट देव कॉन्फ़िगर्ड इज कि प्रोड्यूस सर्विस में एग्जांपल सर्विसेज में एक प्रोड्यूस एग्जांपल मैसेज पड़ा हुआ है अपने पास। so, अगर उसको देखें अपन तो ये है वो प्रोड्यूस एग्जाम्पल मैसेज, ये अवेलेबल है। ओके ये वाली सर्विसेज तुमको कोड में दिख जाएंगी। व्हाट आई शोड बिफोर इज नॉट देयर, दिस आई हैव क्रिएटेड एन एग्जाम्पल, आई शेयर दैट कोड विद यू गाइस। ओके तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अपने को एक एग्जाम्पल मैसेज प्रोड्यूस करना है। मतलब एक एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल है अपने सिस्टम में, उसकी आईडी को लेके दे आर ट्राइंग टू सेंड दिस डेटा टू एन अदर सिस्टम। तो ये अपन एक ये वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, डेटा सेंड करने वाला। एंड दे हैव गिवन अगेन द सिस्टम मैसेज टाइप और रिमोट। आई टोल्ड वी नीड टू नो कि कौन सा टाइप है, तो उन्होंने टाइप डिफाइन किया हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे दी एग्जाम्पल मैसेज, और एक रिमोट आईडी दे दिया है यहाँ पे। एंड दे आर जस्ट रिटर्निंग अ सिस्टम मैसेज आईडी जो बन जाता है। इनसाइड व्हाट दे हैव डन, कुछ नहीं, एग्जाम्पल आईडी से उन्होंने एग्जाम्पल रिकॉर्ड को फेच कर दिया एंटिटी फाइंड करके। दे हैव टर्न इट इनटू अ जेसन। एंड इसमें अपना जैसे वहाँ पे सबसे पहली सर्विस अपने को पता होना चाहिए कि रिसीव कॉल होती है, क्योंकि अपन डेटा रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे अपने को डेटा भेजना है, सो जस्ट रिमेंबर द सर्विस इज द क्यू सिस्टम मैसेज, मैसेज इसको क्यू कर देती है, ठीक है। ये भी आउट ऑफ द बॉक्स सर्विसेज ही, सिस्टम मैसेज सर्विसेज डॉट क्यू सिस्टम मैसेज, इसको अपन देख लेते हैं अभी। एंड व्हाट अदर थिंग्स दे हैव डिफाइंड इज, फिर कंज्यूम की भी एक सर्विस लिखी हुई है उन्होंने। व्हाट इज दैट, सो अच्छा कंज्यूम में वही है, दे गेट द डेटा एंड दे जस्ट स्टोर इट इन द एग्जाम्पल रिकॉर्ड। जैसे अपन ने पार्टी और पर्सन में बनाया था, इन्होंने एग्जाम्पल रिकॉर्ड में डेटा अपने को लेके आना है। इतना सिंपल कंज्यूम लिखा है यहाँ पे भी। नाउ अब यहाँ पे सेंड सर्विस भी है, क्योंकि यहाँ पे लोग ने प्रोड्यूस का एग्जाम्पल भी दिया है। ओके सो अगर यहाँ पे अपने को आउट ऑफ द बॉक्स एक सेंड सिस्टम मैसेज रेस्ट अवेलेबल है, विल हैव अ लुक एट इट। एक बार अपन सिस्टम मैसेज रिमोट एंटिटी को देख लेते हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो जो रिमोट कनेक्शन के लिए यहाँ पे अभी इन्होंने एक लोकल होस्ट यूआरएल यूज़ कर दिया। तो ये एग्जांपल मैंने ऐसे समझना, डेटा हम खुद को ही भेज रहे हैं और खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस दे हैव गिवन द लोकल होस्ट यूआरएल। अदरवाइज ये डेटा कहीं जाएगा, वहाँ से अपने को डेटा मिलेगा। इस टाइप का पूरा फ्लो हो सकता है। सो डोंट गो इनटू मच डिटेल्स, ये वाली चीज़ से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये यही है कि डेटा भेज रहे हैं, खुद को ही अभी कंज्यूम भी कर रहे हैं वो डेटा, जस्ट फॉर डेमो पर्पसेस ऐसा बनाया है। एंड देव गिवन अ यूज़र नेम पासवर्ड अपना ही, इसीलिए कि अपना जो जॉन डॉट डो यूज़र है वो यूज़ करके दे आर एक्सेसिंग दिस। सो इसका अपन अगर चला के देखेंगे, इसको अगर तुम देखोगे ना, एक टेस्ट में भी अवेलेबल है। जस्ट आई एम टेलिंग यू सम फाइल्स जिसको तुम चला के देख सकते हो। तो ये देखो एग्जाम्पल सर्विस टेस्ट में एक सेंड एंड कंज्यूम एग्जाम्पल मैसेज अवेलेबल है। सो तुम जैसे इसको प्रोड्यूस को कॉल करोगे विथ सम एग्जाम्पल आईडी, तो ये मैसेज पहले प्रोड्यूस हो जाएगा, देन देव जस्ट गिवन स्लीप फॉर सम टाइम, ये वेट करेगा और फिर ये रिसीव कर देगा, ठीक है। सेंड मैसेज के बाद ये रिसीव भी कर देगा इस वाले एग्जाम्पल में। अब एक बार क्यू सिस्टम मैसेज सर्विस देख लेते हैं कि ये सेंड कैसे करता है, फिर इसको एक बार रन करके देन विल चेक। तो ये सबसे पहले क्यू सिस्टम मैसेज पे जाएगा,
जैसे रिसीव करने के बाद एक सिस्टम मैसेज रिकॉर्ड बनता है ना, अब ये ऑपोजिट फ्लो हो रहा है लेकिन काइंड ऑफ चीज़ें वही होंगी। अपने को यहाँ पे भी सिस्टम मैसेज रिकॉर्ड बनेगा, उसके मैसेज टेक्स्ट में अब ये जाएगा कि कौन सा डेटा मैं भेज रही हूँ। ठीक है, जैसे वहाँ पे जो डेटा आया था वो स्टोर करते हैं, यहाँ पे जो डेटा हम भेज रहे हैं वो स्टोर होगा सिस्टम मैसेज रिकॉर्ड में। सो सिंपल एक सिस्टम मैसेज रिकॉर्ड बन जाएगा एंड सेंड नाउ डिफॉल्ट ट्रू रहता है, तो ये क्या करेगा, सेंड प्रोड्यूस सिस्टम मैसेज को कॉल करेगा। वहाँ पे रिसीव था, यहाँ पे सेंड है। सो दिस इज दिस सेंड प्रोड्यूस सिस्टम मैसेज। अब यहाँ पे सेम है, जैसे अपन ने बोला था ना, रिसीव में अगर कस्टम सर्विस सिस्टम मैसेज टाइप में कॉन्फ़िगर्ड है तो वो कॉल हो जाएगी इंटरनली, नहीं है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स फ्लो ही चलता है। तो यहाँ पे भी अगर मैंने कोई सेंड सर्विस सिस्टम मैसेज टाइप में डिफाइन करी है तो वो कॉल हो जाएगी। तो इस केस में दे हैव डिफाइंड वन, सी सेंड सर्विस नेम, दे वांट टू डू इट वाया द रेस्ट सिस्टम मैसेज रेस्ट वे, तो अंदर यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। अगर सेंड सर्विस है सो दिस विल गेट कॉल्ड फ्रॉम द सिस्टम मैसेज टाइप। एंड इसका जो स्टेटस अपडेट्स चलता है ये है कि वहाँ पे कंज्यूमिंग था, वहाँ पे सेंडिंग हो जाएगा जैसे ये सेंड करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल अपडेट कि ये सेंड हो गया है। दिस इज मैसेज इज सेंड। तो ये सिस्टम मैसेज, ये एरर है या दिस सर्विस सिस्टम मैसेज को सेंड कर देगा। अब यहाँ पे सेंड सिस्टम मैसेज रेस्ट कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वही अपन ने जो रेस्ट क्लाइंट कॉल करके अपना सर्विस जॉब में लिखा था ना, दिस इज अ सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन विच दे हैव प्रोवाइडेड यहाँ पे। तो वो वाले जो अपना सिस्टम मैसेज रिमोट में जो यूआरएल है ना, वो कॉल हो जाएगा। इसको भी इतना मत देखना है, इसको सिर्फ अपने को भी चला के देखेंगे कि प्रोड्यूस होके ये रिसीव भी हो रहा है। इतना समझने के लिए अपन ये फ्लो भी चलाएंगे। इसको एक बार चला के देखते हैं अपन, इट विल गेट मोर क्लियर। अगेन आई हैव पुट द लॉगर स्टेटमेंट्स अपने कंट्रोल फ्लो देखने के लिए। तो क्या करते हैं अपन, एक एग्जांपल आईडी लेते हैं, से दिस वन, एन एग्जिस्टिंग एग्जांपल आईडी, एंड हाउ विल आई रन इट, वो प्रोड्यूस सिस्टम एग्जांपल को अपन कॉल करते हैं। सो मैं एक एग्जांपल आईडी यहाँ पे दे रही हूँ, सिस्टम मैसेज टाइप डिफाइंड है, रिमोट डिफाइंड है इस केस में। नाउ हियर आई एम सेंडिंग अ रिकॉर्ड, ओके। एंड अभी अपन लोकल होस्ट में भेज के तो ये रिसीव भी हो जाएगा। रिसीव का एनीवेज हमने एक अभी एग्जांपल देख लिया है, इस वाले केस में अपने को ये पूरा फ्लो मिलेगा। ठीक है, तो दो रिकॉर्ड्स बनने चाहिए सिस्टम मैसेज के, एक जो सेंड हुआ है, एक जो रिसीव हुआ है। सो लेट मी रन दिस सर्विस। सी सिस्टम मैसेज आईडी रिटर्न हो गया एक। अब इसको यहाँ देखते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने प्रोड्यूस को कॉल किया था बिकॉज इट हैड टू टेक दैट एग्जाम्पल आईडी एंड सेंड दैट डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोड्यूस में कॉल हुआ, प्रोड्यूस में सबसे उसके बाद उसने क्यू सिस्टम मैसेज को कॉल कर दिया बिकॉज दैट डेटा हैड टू बी क्यूड एंड सेंट फॉरवर्ड। तो जैसे ही मेरा क्यू सिस्टम मैसेज हुआ उसके बाद ये आउट ऑफ द बॉक्स सेंड प्रोड्यूस सिस्टम मैसेज कॉल हो गया। ये सेम है, ठीक है, जैसे वहाँ पे रिसीव वाला हुआ था ना, यहाँ पे अपना सेंड वाली चीज़ें कॉल होगी। फिर उसके बाद इंटरनली हमने डिफाइन किया था सिस्टम मैसेज रेस्ट को ही कॉल करना। हम यहाँ पे कुछ और भी दे सकते थे, तो ये अपना खुद का सर्विस भी लिख के दे सकते थे हम कि इस तरह से सेंड करना है। अगर रेस्ट एपीआई नहीं है, कुछ और टाइप का अपना एक्सटर्नल सिस्टम है, तो अपन अपना कस्टम हैंडलिंग डाल देंगे। फिर वापस से देखो इसके बाद ये रिसीव हो गया, क्योंकि अपन ने इसी अभी अपन ने मौके को ही भेज दिया ये मैसेज। तो ये रिसीव वाला अपन ने फ्लो देखा था, रिसीव कॉल हो गया, कंज्यूम कॉल हो गया एंड कंज्यूम एग्जाम्पल मैसेज कॉल हो गया। So if we see the records, तो अब देखो सबसे पहले ये वाला सिस्टम मैसेज रिकॉर्ड बना था एग्जाम्पल मैसेज का, ये डेटा सेंड हुआ, देखो अब कंज्यूम नहीं हुआ सबसे पहले क्योंकि हमने पहले प्रोड्यूस किया था। ठीक है, सो इज इट एन आउटगोइंग मैसेज? यस,
द वन विच वी रिसीव वॉज नॉट एन आउट गोइंग मैसेज, दैट वॉज एन इनकमिंग मैसेज, कि डेटा हम लेके आ रहे थे कहीं से। तो ये सेंड हो गया एंड वी सी, उसने वो वाले एग्जाम्पल आईडी का रिकॉर्ड फेच करके एग्जाम्पल में डाल दिया, ये मैसेज टेक्स्ट में डाल दिया था, राइट। जहाँ पे अब वहाँ से अपन जो डेटा रिस्पॉन्स से लेके आते थे वो डाल देते हैं, यहाँ जो डेटा भेजते हैं पहले वो मैसेज टेक्स्ट में स्टोर करता है। अब इसके बाद जब डेटा भेज दिया था तो अपने मौके ने उसको उठा लिया कि उसको रिसीव करके कंज्यूम करना था। सो दैट्स वाई द सेकेंड एग्जाम्पल सिस्टम मैसेज रिकॉर्ड योर सीन। तो ये अब कंज्यूम हो गया, दिस वॉज नॉट एन आउट गोइंग मैसेज, दिस वॉज एन इनकमिंग मैसेज। एंड ये किससे कनेक्टेड है, रिमोट मैसेज आईडी जो है ना, दिस इज दिस आईडी, कि इससे ये रिसीव हुआ है, इसने अपने को प्रोड्यूस करके दिया था। एंड ये सारा डेटा वापस, अब इसमें डेटा सेम ही है क्योंकि अपन इसी को ही भेज के इसी को ही रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये पूरा एक फ्लो ने दिया हुआ है जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पजेस कि इस तरह से तुम प्रोड्यूस का भी लिख सकते हो एंड कंज्यूम का भी लिख सकते हो। तो अभी के लिए व्हाट यू डू इज आई शेयर द कोड ऑफ दैट रेस्ट एपीआई जो अभी अपन ने कॉल किया ना रिसीव वाला, तुम अभी वन साइड का ही फ्लो देख लेना, ठीक है। सिमिलर है, अगर अपने को एक समझ में आ गया तो अपन दूसरा भी समझ सकते हैं कि अपन बस डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज को कॉल करना है, ठीक है। इसमें भी अगर कोई एरर आता है ना, इट विल लॉग इन द सिस्टम मैसेज एरर, दिस इज ट्रू फॉर बोथ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेजेस। सो सो व्हाट आई डू इज आई शेयर दिस कोड विद यू, इसको एक बार चला के देखना, रेप्लिकेट दिस कोड इन योर कॉम्पोनेंट, ठीक है। तुम लोग कोई दूसरा यूजर या कोई और रिसोर्स तुमको कोई भी अभी पब्लिकली अवेलेबल रेस्ट एपीआई से कॉल करना है, दैट इज फाइन। अभी यूजर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अपने को पार्टी और पर्सन का पता था थोड़ा, तो वी वर एबल टू मैप इट कि अपने को यहाँ मौके में स्टोर करना है, ठीक है। एंड एक सर्विस जॉब भी बना के देखना एंड ट्राई ट्राई दिस आउट वंस, ठीक है। और मैंने जो लॉगर स्टेटमेंट्स डाले हैं ना, ट्राई डूइंग दैट, तो तुम लोग को भी फ्लो समझ में आएगा कि पहले इधर गया फिर ये वाली सर्विस कॉल होती है। तो आज का अपने यही था कि ये अपने को फ्लो पता होना चाहिए, सिस्टम मैसेज टाइप क्यों यूज़ करते हैं, सिस्टम मैसेज रिमोट क्यों यूज़ करते हैं, and what are the different services for sending a message and receiving a message from an external system if we have to integrate to an external system, ठीक है। तो इसको तुम एक बार चला के देखोगे ना तो तुम्हें थोड़ा आइडिया और लगेगा अभी। Okay, that's what I had for today. Yeah, so we've seen both the examples. ये एग्जाम्पल अभी रेस्ट एपीआई का लिया था, इसको ऐसे मत मान के चलना कि यही टाइप के ही इंटीग्रेशंस होते हैं, इट कैन बी डिफरेंट सिस्टम एज वेल, ठीक है। अभी वी टुक द एग्जाम्पल क्योंकि अपने को रेस्ट का थोड़ा आइडिया था कि व्हाट आर रेस्ट एपीआईज, हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद इट। ओके, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस राइट नाउ? Okay, then I'll stop.